me start. So today's topic is static storage class. We have already discussed auto, register, as well as external storage class. Now the fourth storage class is static. So what is static storage class? So static variables are those variables whose initial value is 0. Whose initial value is 0. Lifetime is program. Lifetime is program, means they are created when the program starts and they get destroyed when the program ends. But their scope is blocked. Scope is blocked in the sense they can be accessed only within that block. उसको आप उस block के बाहर access नहीं कर सकते. And the last property is they are also created in RAM. Their storage location is also क्या? RAM. But इनका इसका एक बड़ा important point है बच्चे. They retain their values between any two function calls and are created only once. So ये जिसको मैंने underline किया है, maybe अभी आप इसको understand नहीं कर पाएंगे because यहाँ पे एक नया चीज add हो गया functions. तो mind में एक question आएगा सर what is functions? So next examples या आने वाले कुछ दिनों में हम functions पढ़ेंगे और तब हम इसको सीखेंगे कि what are function और उसके बाद देखेंगे कि how they are going to retain their values, right? What is बच्चे? Yes sir. Yes sir. So what is the syntax of creating static variables? So हमें अब keyword कौन सा लगाना है? Static. Static data type और variable का नाम. For example, static int x, static float y, etc. Static char z, and so on. So static variables are initialized only once. ये basically functions का concept है. So आने वाले कुछ दिनों में हम जब functions पढ़ेंगे, again I'll take the example of static variables. Okay बच्चे? So for the time being, we are going to take a very simple example. हम एक static variable बनाते हैं int x. So can you tell me इसकी initial value क्या होगी? Static. 0. So its initial value is 0. और ये जो x नाम का variable है, अब वो इसी block में access होगा, इसके बाहर access नहीं होगा. पर ये create कब होगा? जब program start होगा. जैसे ही program start होगा, ये तभी create हो जाएगा. और ये destroy कब होगा? जब program end होगा. एक static variable बनाया है और एक मैंने example के लिए एक normal variable बनाया है int y. Can you tell me ये y जो variable है इसकी storage class क्या हो? Auto. अगर हम कोई भी storage class नहीं लगाते, then the default storage class is auto. So what is the initial value of x? 0. What is the initial value of y? Junk. तो अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा बच्चे तो वो क्या प्रिंट करेगा? Junk. x की 0. और अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा what it will print? Junk. Exactly. So the output of our program will be x, initial value is 0, y is junk. जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो 0 is displayed for x and junk is displayed for y. But x का जो स्कोप है वो भी ब्लॉक है और y का भी स्कोप क्या है? ब्लॉक. बट दोनों का लाइफ टाइम डिफरेंट है. स्टैटिक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम है, जबकि ऑटो वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम है वो एक ब्लॉक. ओके बच्चे? इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, फंक्शंस वाली एग्जांपल्स हम तब पढ़ेंगे when we are going to learn some functions. But this is the basic example of functions. Right? So बच्चे मैं चारों स्टोरेज क्लासेस को एक सम अप कर रहा हूँ. So first storage class is auto, whose initial value is Junk. उसका लाइफ टाइम क्या है? Block. Scope is Block. and they are created into Cache. RAM. ऑटो वाले किस में बनते हैं? RAM में. रजिस्टर वेरिएबल सिर्फ कैश में बनते हैं. So register variables initial value is junk.
Lifetime is block. Block. Scope is block. Block. And they are created in. Cache. What are external variables, also called as global variables? Initial value is. Zero. Lifetime is. Program. Scope is. Program. And they are also created in kisme. RAM. What are static variables? Their also initial value is kya? Zero. But their lifetime is. Program. Scope. Block. And they are also created in RAM. RAM. तो बच्चे अगर हमें थ्योरी लिखनी है तो एक छोटी सी टेबुलर फॉर्म से हम पूरी थ्योरी लिख सकते हैं. लाइक ऑटो also called as automatic variables whose initial value is junk, lifetime is block, scope is block, and they are created in RAM. Definition इसी से आगे. What are register? Register variables are those variables whose initial value is Junk. whose lifetime is block, whose scope is block, and their storage location is Cache. तो इस डायग्राम को देख के या इस टेबल को देख के हम 4 डेफिनेशंस लिख सकते हैं और ऑलमोस्ट सबका सिंटेक्स क्या रहेगा? Same. है ना? And after that we can take one example. Right, बच्चे? Yes, sir. So we have finished up with one more topic named as storage classes. चलिए बच्चे, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है that is pointers. That is Pointers. बच्चे, अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स सी की पढ़ेंगे, मैक्सिमम जब आप सी की किताबें पढ़ते हैं ना, तकरीबन जितनी भी अभी तक बनी है उनमें एक चीज लिखी जाती है, पॉइंटर्स आर डिफिकल्ट टू मास्टर. इनको समझना बुक्स वाले लिखते हैं कि ये इतनी जल्दी से समझ नहीं आता, बट मेरा ये मानना है पॉइंटर्स सबसे छोटा कंसेप्ट है और सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट. इसमें सिर्फ 2-3 चीजों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो पॉइंटर से इजीएस्ट कोई कंसेप्ट नहीं. और हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है, वी आर गोइंग टू स्टडी नेम्ड एज डेटा स्ट्रक्चर. वो पूरे का पूरा सब्जेक्ट इन पॉइंटर्स पे बेस्ड है. एंड लेट मी टेल यू, जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो सी का बैकबोन. सी के सारे कंसेप्ट्स लाइक वेरिएबल, एरेज, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन जितनी भी चीजें आपने सी में पढ़ी वो सारे कंसेप्ट एक तरफ और पॉइंटर का कंसेप्ट एक तरफ. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग व्हाट एक्चुअली इज पॉइंटर. तो पॉइंटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग एनी मेमोरी ब्लॉक यूजिंग देयर एड्रेस. जब हम किसी भी मेमोरी ब्लॉक को मैनिपुलेट कर लेते हैं उसके एड्रेस के थ्रू, उसकी एड्रेस की हेल्प के थ्रू, तो उस कंसेप्ट को आप आंखें बंद करके बुलाना शुरू कर दीजिए पॉइंटर. और मेमोरी ब्लॉक में बच्चे हम 2 ही काम करते हैं, किसी भी मेमोरी में 2 ही काम करते हैं, या डेटा स्टोर करते हैं या डेटा फेच करते हैं. राइट? आइदर वी स्टोर द डेटा और वी फेच. और आज तक हमने जितने भी डेटा स्टोर या फेच किए, क्या मेमोरी का एड्रेस यूज करते थे या मेमोरी का नाम यूज करते थे? मेमोरी का नाम. हम मेमोरी का नाम मींस वेरिएबल का, वेरिएबल भी एक मेमोरी ही है. राइट? Yes, sir. वेरिएबल में डेटा स्टोर और फेच करने के लिए आप वेरिएबल का एड्रेस का इस्तेमाल करते थे या उसके नाम का? नाम का. उसके नाम का. तो आज तक हमने जितनी भी मैनिपुलेशंस की वेरिएबल्स के साथ, या वेरिएबल भी एक मेमोरी है, तो जितनी भी मैनिपुलेशंस की वो की विद द हेल्प ऑफ देयर नेम्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ देयर एड्रेसेस. बट सी वाला कहता है कि अगर आप वेरिएबल में डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते हो उसके एड्रेस के थ्रू, तो समझ लो आपने पॉइंटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया. राइट? सर पॉइंटर का यूज करने से क्या फायदा है? फायदा नुकसान हम बाद में पढ़ेंगे, बट बेसिकली कोई पूछे व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग एनी मेमोरी ब्लॉक यूजिंग देयर एड्रेस. और मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? टू स्टोर एंड टू फेच. फेचिंग और स्टोरिंग, जब हम किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर या फेच करेंगे
इंस्टेड ऑफ उसके नाम के बदले उसके एड्रेस के थ्रू, तो समझ लेना आपने पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर लिया. And in C language, the concept of pointers is implemented with the help of pointer variable. अब पॉइंटर के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल, राइट. तो कल को कोई पूछे कि पॉइंटर वेरिएबल क्यों यूज होता है, तो आप कहोगे जब मैंने किसी मेमोरी में डेटा स्टोर या फेच करना है उसके एड्रेस के थ्रू, इसलिए हम पॉइंटर वेरिएबल को क्या करते हैं? इस्तेमाल. Right? Yes, sir. So what is pointer variable? It is not an ordinary variable, it is a special variable which can store the address of some other variable या memory block. Pointer variable is a special variable which can store the address of some other variable या memory blocks. सर इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम नॉर्मल वेरिएबल जो आज तक बनाए, क्या उसमें एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते थे? बच्चे ये चीजें समझनी है कि नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में फर्क क्या है. नॉर्मल वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है? डेटा. जबकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होंगे? एड्रेस. ये दोनों का, बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई, इन शॉर्ट में कुछ ऐसा बोलूं कि अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल के अंदर कोई चीज डालूंगा तो वो हमेशा डेटा ट्रीट किया जाएगा, और अगर सेम चीज अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल में डाल दूं तो उसको वो डेटा नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा? एड्रेस. बस बच्चे यही दो, जिसको ये दो पॉइंट समझ आ गए उसको पॉइंटर्स आ गए. सो पॉइंटर वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप. नॉर्मल वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम. और पॉइंटर वेरिएबल को बनाने का बेटा सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप एस्टेरिक. इसके पहले क्या लगेगा? एस्टेरिक. और फिर पॉइंटर वेरिएबल, राइट. फॉर एग्जांपल यस. इंट स्पेस देके स्टार पी, फ्लोट एस्टेरिक क्यू और कैर एस्टेरिक जी. अगर मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाना होता तो मैं लिखता इंट पी फ्लोट क्यू कैर जी, राइट. जबकि नॉर्मल वेरिएबल मुझे कब बनाने हैं? जब मुझे डेटा स्टोर करना है. तो अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे एड्रेसेस को स्टोर करना है तो नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं आएंगे. उस केस में क्या काम आएंगे? पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल. इट इज अ काइंड ऑफ, बच्चे एक एग्जांपल मैं कह दूं, वेरिएबल को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वेरिएबल को क्या बुलाते हैं? सिंपल भाषा कंटेनर है ना. कंटेनर. हमारी लाइफ में अलग अलग कंटेनर होते हैं अलग अलग चीजों के लिए. एग्रीड. कपड़े रखने के लिए अलग कंटेनर है जिसको आप अलमीरा बुलाते हो. तो दूध रखने के लिए यू हैव बाउल, पतीला जिसको बोलते हो, राइट. यस सर. सिमिलरली बच्चे प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी अलग अलग कंटेनर है. अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए मैं नॉर्मल वेरिएबल यूज करूंगा, और अगर मुझे एड्रेसेस स्टोर करने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? पॉइंटर वेरिएबल. राइट. अगर मुझे इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो इंटीजर वेरिएबल. डेसिमल डेटा स्टोर करना है तो फ्लोट वेरिएबल. कोई करेक्ट सिंबल स्टोर करना है, करेक्टर, तो करेक्टर वेरिएबल. डेटा. बट अगर बच्चे मुझे कोई एड्रेस स्टोर करना है तो हमेशा किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पॉइंटर वेरिएबल का. मतलब कि सी वालों ने बेसिक कर दिया कि एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हमेशा पॉइंटर वेरिएबल इस्तेमाल करोगे, नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होगा. तो ये देख लीजिए, पॉइंटर वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए. पहली प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक. मेमोरी ब्लॉक मींस वेरिएबल भी एक क्या होता है? मेमोरी ब्लॉक, राइट. दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा. साइज ऑफ एनी पॉइंटर वेरिएबल इज ऑलवेज 2 बाइट्स. मींस आप कोई भी पॉइंटर वेरिएबल बना लीजिए, चाहे इंट का बनाइए, चाहे फ्लोट का बनाइए, चाहे कैर का बनाइए, चाहे डबल का बनाइए,
हर एक पॉइंटर वेरिएबल का साइज कितना होगा? 2 bytes. 2 बाइट्स। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन है ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज टू स्टोर द एड्रेस। चाहे इंटीजर पॉइंटर होगा उसने भी एड्रेस स्टोर करना है, फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल होगा उसने भी क्या स्टोर करना है? Address. और करेक्टर वाला पॉइंटर वेरिएबल होगा उसने भी क्या स्टोर करना है? Address. और हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं हर मेमोरी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट? याद है कुछ? Yes, Memory is made up of small units called as cells. Each cell has a unique address. और एड्रेस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हमारा एड्रेस ना तो कभी डेसिमल में हो सकता है ना कभी नेगेटिव हो सकता है, वो हमेशा क्या होता है? Positive integer number. और पॉजिटिव इंटीजर नंबर बच्चे हमेशा कितने बाइट मेमोरी लेगा? 2 bytes. 2 बाइट्स। तो इसीलिए सी वालों ने बोल दिया कि आप कोई भी पॉइंटर वेरिएबल बनाओ उसकी मेमोरी हमेशा कितनी होगी? 2 bytes. 2 बाइट्स। तो फिर सर फिर सारे पॉइंटर इंटीजर होने चाहिए, फ्लोट क्यों होंगे? राइट? फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर सारे कोई भी पॉइंटर वेरिएबल लो सबका साइज 2 बाइट है तो सारे पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर क्यों नहीं हो सकते? तो इसका आंसर ये है data type of any pointer variable represents that how many bytes of memory can be manipulated at a given time. जो इंटीजर पॉइंटर है इसका मतलब है कि वो पॉइंटर 2-2 बाइट करके मैनिपुलेशन करेगा, और जो फ्लोट वाला पॉइंटर है वो कितने बाइट की मैनिपुलेशन करेगा? 4 बाइट की। डबल वाला पॉइंटर वेरिएबल 8 बाइट की करेगा, और करेक्टर वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कितने बाइट की मैनिपुलेशन करेगा? मैनिपुलेशन 1 बाइट। 1 बाइट। बट पॉइंटर वेरिएबल कोई भी होगा मेमोरी वो कितनी लेगा? 2 बाइट। बाइट। बट उनकी मैनिपुलेशन चेंज हो जाएगी, राइट? तो बच्चे अब ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल किस लिए यूज होता है? क्या स्टोर करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल यूज होता है? टू स्टोर डेटा। डेटा, राइट? नॉर्मल वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है बच्चे? डेटा टाइप वेरिएबल नेम। और पॉइंटर वेरिएबल किस लिए यूज होता है? टू स्टोर एड्रेस एड्रेस। स्टोर इसका करने के सिंटेक्स लिए। क्या होगा? डेटा टाइप एस्ट्रिक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम। नॉर्मल वेरिएबल को बनाने का सिंटेक्स इंट एक्स फ्लोट वाई। मुझे बताओगे एक्स नाम के वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी? 2 बाइट। 2 बाइट्स। वाई नाम के वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी? 4 बाइट। एक्स वाले को 2 मिलती है, वाई वाले को 4, क्योंकि एक्स के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर होगा और वाई के अंदर फ्लोट वाला जिसकी 6 डेसिमल प्लेसेस हमने पढ़ी है ना, और फ्लोट डेटा की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। बच्चे अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ मुझे बताओगे पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी? 2 bytes. वेरी नाइस, 2 बाइट्स। और क्यू नाम के पॉइंटर वेरिएबल को 2 bytes. कितनी बाइट्स? 2 bytes. 2 बाइट। पॉइंटर वेरिएबल कोई भी होगा मेमोरी विल बी 2 बाइट्स। 2 bytes. देखिए बच्चे अगर मैं कहता हूँ int x तो हम बोलते हैं allocate 1 block of memory of 2 bytes और उसका नाम क्या रख दो? x। तो इस केस में x is the name of that memory block और इस मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई अपना एड्रेस भी होगा, राइट? अगर मुझे x का एड्रेस पता करना हो बच्चे, x वेरिएबल का एड्रेस पता करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एम्परसेंड x, है ना? किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मैं एम्परसेंड लगा दूंगा तो मुझे उसका डेटा देगा या उसका एड्रेस देगा? Address. उसका एड्रेस। y allocate 4 bytes of memory और उसका नाम क्या रखो? y। और इस मेमोरी का भी तो अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा बच्चे, होगा ना एड्रेस? तो कह सकता हूँ कि हर मेमोरी ब्लॉक की 3 चीजें होती हैं बच्चे। हर मेमोरी ब्लॉक, कोई भी मेमोरी ब्लॉक हो उसकी 3 चीजें होंगी।
एक उसका नाम, एक उसके कंटेंट्स, एक उसके क्या कंटेंट, और हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या भी होगा, एड्रेस। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस वाला, ये जो फर्स्ट वाला मेमोरी ब्लॉक है 2 बाइट का, अगर इसके अंदर 5 स्टोर करना है बच्चे, क्या स्टोर करना है 5, 5 तो मुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, शाबाश, x is equal to 5 इसका मतलब आपने सेमीकोलन 5 को स्टोर किया इस मेमोरी ब्लॉक में, उसका नाम इस्तेमाल करके, उसका नाम आपने इस्तेमाल। नेम की हेल्प ली ना, एड्रेस की नहीं ना ली, ना सर, आपने एड्रेस की हेल्प नहीं ली। मैं सेकंड वाले मेमोरी ब्लॉक में बच्चे 9.8 स्टोर करना चाहता हूँ, 9.8, कैन यू टेल मी मैं क्या स्टेटमेंट लिखूं, शाबाश, y is equal to 9.8 y इज इक्वल टू 9.8, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि 9.8 स्टोर करो उस मेमोरी में जिसका नाम y है, जिसका नाम क्या है, y। इसका मतलब मैंने दोनों मेमोरी ब्लॉक्स को मैनिपुलेट किया, उसकी एड्रेस की मदद से या उसके नाम की मदद से, नाम की मदद से। उनके नेम्स की हेल्प के साथ। इसका मतलब आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हम सब में नेम की मदद लेते थे, राइट। बट पॉइंटर क्या कहता है कि मेमोरीज में डेटा स्टोर या फेच करो उसके नाम की मदद के थ्रू या उसके एड्रेस के थ्रू, उसके एड्रेस के थ्रू। सेम यही चीज बच्चे जब मैं एड्रेस के थ्रू करना शुरू कर दूंगा तो कंसेप्ट क्या गिनना जाएगा, पॉइंटर्स, इट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो ये देखिए पॉइंटर जब मेरा वेरिएबल बना p नाम से, पॉइंटर वेरिएबल का भी अपना नाम है, उसका भी अपना एड्रेस होगा बिकॉज इट इज अगेन अ वेरिएबल, बट उसके कंटेंट डेटा होगा या मेमोरी होगी, मेमोरी, क्योंकि पॉइंटर के अंदर हमेशा क्या स्टोर होती है, मेमोरी या एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। बच्चे जब मैं q का पॉइंटर बनाऊंगा, कैन यू टेल मी इसको भी कितनी मेमोरी मिलेगी, 2 बाइट। 2 बाइट्स, राइट। यस क्यों, p को भी 2 बाइट, q को भी 2 बाइट, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या पॉइंटर स्टोर होने हैं, वेरिएबल एड्रेस मेमोरी एड्रेस, और एड्रेस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नंबर। नंबर्स, और पॉजिटिव इंटीजर नंबर हमेशा 2 बाइट मेमोरी। अगर आप नॉर्मल वेरिएबल की बच्चे बात करते हो, नॉर्मल वेरिएबल की, क्या इनमें एड्रेस स्टोर हो रहे हैं, अलग अलग तरह का डेटा, अलग अलग तरह का डेटा। इंटीजर डेटा के लिए 2 बाइट है, फ्लोट के लिए 4 बाइट है, हाई एक्यूरेसी जाना है लाइक डबल डेटा जिसमें एक्यूरेसी अप टू 10 डेसिमल तक है तो उसके लिए 8 बाइट, और अगर कोई सिंबल स्टोर करना है तो 1 बाइट। तो सी में अलग अलग तरह का डेटा, उनको स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स। बट मेमोरी जो होती हैं, चाहे वो 2 बाइट की मेमोरी ब्लॉक हो, चाहे 4 बाइट का हो, चाहे 8 बाइट का मेमोरी ब्लॉक हो, इन सबके जो एड्रेसेस होंगे वो अलग अलग होंगे या पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स ही होंगे, और पॉजिटिव इंटीजर नंबर हमेशा कितने बाइट मेमोरी लेता है, 2 बाइट। आज हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाना सीखा, सिर्फ क्या बनाना सीखा, पॉइंटर कल हम सीखेंगे बच्चे इसी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कैसे डेटा स्टोर और कैसे डेटा फेच करना, राइट। और जिस दिन हमें स्टोर और फेच करना आ गया पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, तो समझ लो हमने किसका काम कर लिया, पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया। सर उसके फायदे या नुकसान वो बात की बात है, विल डिस्कस कि पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करने से प्रोग्राम फास्ट चलेगा या स्लो, वो बात की बात है, राइट। यस सर। सो आज हमने पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ा, पहला है पॉइंटर, फिर आ गया पॉइंटर वेरिएबल। सो व्हाट इज पॉइंटर, is the concept of मैनिपुलेटिंग एनी मेमोरी यूजिंग देयर एड्रेस, राइट। और पॉइंटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, pointer variable का। पॉइंटर वेरिएबल का। व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो क्या स्टोर करता है,
Address. एड्रेस, राइट। और उसको बनाने का सिंटेक्स नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें एस्ट्रिक लगता है। इसमें क्या लगता है? Asterisk. पॉइंटर वेरिएबल की प्रॉपर्टी कि इसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो डेटा होगा या एड्रेस होगा? Address. यस, पॉइंटर वेरिएबल के कंटेंट हमेशा एड्रेस होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल के जो कंटेंट्स हैं वो डेटा होता है, राइट। Yes. दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी पॉइंटर वेरिएबल हो, चाहे इंटीजर बनाओ, चाहे फ्लोट बनाओ, चाहे कैरेक्टर बनाओ, मेमोरी हमेशा कितने बाइट लगेगी? 2 bytes. 2 बाइट। क्यों? क्योंकि इट हैज टू स्टोर द एड्रेस एंड एड्रेस इज ऑलवेज क्या? Positive. 2 bytes. पॉजिटिव इंटीजर नंबर। Numbers. तो फिर इसका डेटा टाइप क्या बताता है? जो इंटीजर पॉइंटर है वो 2 बाइट की मैनिपुलेशन करेगा, जो फ्लोट का पॉइंटर है वो कितने बाइट की मैनिपुलेशन करेगा? 4 बाइट। और डबल वाला पॉइंटर कितने बाइट की मैनिपुलेशन करेगा एट ए टाइम? 8 बाइट्स, राइट। Yes, sir. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले ली हैं, मे बी आगे हम इसको कुछ स्टडी करें। ठीक है बच्चे, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। मे बी अब कल पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम डेटा स्टोर और रिट्रीव करें, राइट। Okay, yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे।